A very good afternoon, dear students. So I hope you all must have done both the passages which I had given you in the last class, and you must have solved those things in your copy. Remember, students, keep your copies prepared. I may ask for the photographs of your copy any day. So do not be in the sense that your copies will not be checked. Your copies will definitely be checked. So keep your copies ready. I may ask any day to see your fair copies. Okay? Okay, now come on, let's start with the second chapter of our book, Hornbill. And the name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Gordon Cook and Ellen East. The chapter's topic or the chapter name itself shows the unity in the chapter. We are not afraid to die if we can all be together. It shows the unity of a family, that the family is not afraid to die if they can all be together. So before starting with the chapter, again, there are some expressions given to you whose meanings you have to infer from the context. Infer from the context means related to the context, related to the matter or the chapter which is given to you. So again, it's a task for you. You have to search the meanings of these 5 things, these 5 phrases. You have to write those meanings in your fair copy, and when we'll be studying, when we'll be going through the explanation of the chapter, you'll have to relate it to the meanings which I tell you. And you have to see whether you have found out the correct meanings or not. ये 5 phrases के meanings आपको लिखने हैं, और फिर जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको उनको समझना है, रिलेट करना है कि जो मीनिंग्स आप लोगों ने खुद ढूंढे हैं वो चैप्टर के रेलेवेंट है कि नहीं. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. ये एक फैमिली की स्टोरी है. द यूनिटी, द लव एंड द बॉन्डिंग ऑफ अ फैमिली. कैसे वो नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी मरने से नहीं डरते हैं, प्रोवाइडेड दे आर ऑल टुगेदर एट दैट पॉइंट. नाउ लेट्स स्टार्ट. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6. 6 is the age of the son, Jonathan. Daughter Suzanne, 7. And I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. Round-the-world voyage का मतलब क्या होता है? Voyage, सबसे पहले तो voyage का मतलब होता है sea journey. ठीक है? वाटरवेज के थ्रू ट्रैवल करना उसे कहा जाता है वोयाज. राउंड द वर्ल्ड वोयाज सुना है आप लोगों ने? जब ये चैप्टर लिखा गया था, जब ये पार्ट लिखा गया था, उसके 200 इयर्स पहले कैप्टन जेम्स कुक थे, एक सेलर. उन्होंने राउंड द वर्ल्ड वोयाज किया था. राउंड द वर्ल्ड वोयाज मतलब पूरी पृथ्वी, एज वी ऑल नो अर्थ इज राउंड, तो वो पूरे राउंड को कवर अप करके वाटरवेज के थ्रू जहां से शुरू किया था वहीं खत्म करना. मतलब पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना वाटरवेज के थ्रू और वहीं घूम फिर के वापस आना. तो ये जो फैमिली थी, उस फैमिली ने सोचा उसको डुप्लीकेट करें. मतलब एक बार जो राउंड द वर्ल्ड वोयाज 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया, उसी राउंड द वर्ल्ड वोयाज को ये फैमिली दोबारा करना चाहती थी. अब वो खुद करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि वो लोग कर सकते हैं कि नहीं. तो जुलाई 1976 में उन्होंने अपना वो स्टार्ट किया. और उसमें कौन कौन थे? जो राइटर है उनकी वाइफ मैरी, उनका बेटा 6 साल का जोनाथन, बेटी सुजान 7 साल की. दे स्टार्टेड सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ. इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. दे सेट सेल फ्रॉम देयर, मतलब उन्होंने अपनी सेलिंग जो है वो, उस जर्नी की शुरुआत जो है वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से की थी. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. अब इन दोनों हस्बैंड वाइफ का बहुत पुराना सपना था. द मेन लीड और द हस्बैंड ऑफ द फैमिली इज अ 37-year-old बिजनेसमैन. एक 37 ईयर्स के बिजनेसमैन है वो, और उन्होंने, उनकी वाइफ ने काफी समय पहले से एक सपना देखा था ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. वो फेमस एक्सप्लोरर की याद में उनको ट्रिब्यूट देने के लिए वो वापस एक और ऐसी सेलिंग करना चाहते थे और उस वोयाज को कॉपी करना चाहते थे. और पिछले 16 ईयर्स से
पिछले 16 सालों से उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने लेजर टाइम मतलब फ्री टाइम जो हमारे पास दिन में होता है, हम पूछते हैं ना कि हमसे पूछा जाता है लेजर टाइम एक्टिविटी क्या है आपकी, जब आप फ्री होते हैं तो क्या करते हैं, कोई टीवी देखता है, कोई सोता है, कोई म्यूजिक बजाता है, कोई डांस करता है, कोई पेंटिंग करता है। इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने पिछले 16 साल से जो भी अपना लेजर फ्री टाइम हुआ करता था वो किसमें स्पेंड किया? होनिंग आर सी फेयरिंग स्किल्स। सी फेयरिंग स्किल्स मतलब सी को मैनेज करने की स्किल्स, सी में सेल करने की स्किल्स, समुद्र में सेल करने की स्किल्स, या फिर समुद्र में जहाज लेकर चलाने की और चलने की स्किल्स, उसको होनिंग, उसको एक्सपर्टाइज करने में, उसको और ज्यादा अच्छा स्ट्रांग बनाने में। मतलब उन्होंने ब्रिटिश वाटर्स में, ब्रिटेन के जितने भी रफ से रफ सी थी, उन रफेस्ट सीज में भी उन्होंने अपनी स्किल्स को पूरी तरह से स्ट्रांग करने की कोशिश की थी। अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को, सी में ट्रेवल करने की स्किल्स को एक्सपर्टाइज किया था और 16 सालों से वो अपनी इस वोयाज की तैयारी कर रहे थे। और बोट वेव वॉकर, अब ये उनकी बोट का नाम था वेव वॉकर। और 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, लंबाई कितनी थी उनकी बोट की? 23 मीटर और 30 टन वजन था उस बोट में। वुडन हल्ड ब्यूटी, वुड की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई एक ब्यूटीफुल सी जो वो पूरी शिप थी या बोट उन्होंने बनाई थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, उन्होंने उसको पूरी तरह से प्रोफेशनली बनवाया था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर वी कुड। और सिर्फ ऐसा नहीं कि तुरंत वो बोट बनी और वो लेके चल दिए, नहीं, उस बोट के बनने के बाद कई महीनों तक उन्होंने रफ से रफ सी, रफ मतलब बिल्कुल बड़ी बड़ी लहरें वाली और भयंकर तूफानों वाली समुद्र में भी उन्होंने जितनी भी रफ से रफ सी में वो उस बोट को ले जाकर ट्राई कर सकते थे, प्रैक्टिस कर सकते थे, सब कुछ किया। वो चाहते थे परफेक्शन हो। The first leg of our planned 3-year 105 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. फर्स्ट लेग, पहला चरण, अलग अलग चरणों में, मतलब उन्होंने डिवाइड कर लिया था कि इतने साल में हम वहां पहुंच जाएंगे, इतने साल में वहां पहुंच जाएंगे, फिर वहां से अपने आप को थोड़ा सा नरिश करेंगे, सामान लेंगे, अपनी बोट को स्ट्रांग बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो पहला चरण था उनका, जो 3 साल का उन्होंने प्लान किया था कि 3 साल में हम 105 किलोमीटर ट्रैवल करके अफ्रीका के केप टाउन तक पहुंच जाएंगे, वो उन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen। अब केप टाउन से उन्हें ईस्ट की तरफ बढ़ना था, तो ईस्ट की तरफ आते समय उन्होंने अपने साथ 2 क्रू मेंबर रख लिए, मतलब 2 और ज्यादा प्रोफेशनल लोग अपने साथ रख लिए। और वो कौन थे? एक तो अमेरिकन था जिसका नाम था लैरी विगिल, और दूसरा स्विस था, मतलब स्विट्जरलैंड का था, उसका नाम था हर्ब सिगलर। To help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean। अब वो अफ्रीका केप टाउन से ईस्ट की तरफ बढ़े और वो एरिया कौन सा था? इंडियन ओशन का साउथ पार्ट, द सदर्न इंडियन ओशन। अब वो जो सदर्न इंडियन ओशन है वो पूरी दुनिया में रफेस्ट सी मानी जाती है, सबसे ज्यादा तूफान जिसमें आते हैं, सबसे ज्यादा लहरें जहां उठती है और सबसे ज्यादा रफ जो समुद्र है वो सदर्न इंडियन ओशन है। अब उसको टेकल करने के लिए हालांकि उन्होंने इतने सालों से प्रैक्टिस की है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ और प्रोफेशनल्स की जरूरत थी, तो उसको टेकल करने के लिए उन्होंने अपने साथ 2 लोग और जोड़ लिए और बढ़े। A very good afternoon, students. We had started with the second chapter, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. The story revolves around the unity and togetherness of a family and about their round the voyage journey which they wanted to duplicate again. Finally, the family of 4 started with their sail from Plymouth, England, and they completed the first step of their journey very easily। वो अपनी फर्स्ट स्टेप को इजीली कंप्लीट करके केप टाउन तक आ गए थे और वहां से फिर उन्हें सदर्न इंडियन ओशन की तरफ पलटना था। और ऐसा माना जाता है दैट सदर्न इंडियन ओशन इज वन ऑफ द रफेस्ट सीज। सबसे ज्यादा रफ सी अगर कोई है तो वो सदर्न इंडियन ओशन है। तो वो उसको संभालने के लिए उन्होंने अपने साथ 2 क्रू मेंबर रख लिए, एक अमेरिकन था और एक स्विस था from Switzerland. Now let's continue.
On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. अब वो केप टाउन से निकले ही थे, एक ही दिन हुआ था और दूसरे दिन उन्हें तेज हवाओं का सामना होने लगा समुद्र में. स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स मीन्स हाई विंड्स, तो तेज हवाओं का सामना उन्हें होने लगा. For the next few weeks they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. तो अगले कुछ हफ्तों तक वो हवा जो है वो ऐसी तेज हवाएं जो हैं वो चलती रहीं. तो ऑथर का कहना है कि उन हवाओं से उन्हें जितना फ़र्क नहीं पड़ा, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ा उन्हें वो बड़ी बड़ी लहरें जो उस समुद्र में उठ रही थी. उन लहरों की वजह से वो थोड़े ज़्यादा डरे हुए थे. देवर अलार्मिंग, अलार्मिंग मतलब थोड़ी सी अवेयर, एकदम से चौकन्ना करने वाली, वो थोड़ी सी डराने वाली थी. क्योंकि कुछ कुछ लहरें तो इतनी ऊंची ऊंची थी कि वो 15-15 मीटर ऊंचाई तक जाती थी. 15 मीटर्स हाई वेव्स, उन वेव्स को देखकर कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सी चिंता हो जाया करती थी. एज हाई एज आर मेन मास्ट, मेन मास्ट जो था उनका, जो उनकी बोट का जो मेन मास्ट था वो जितना ऊंचा था उतनी तक उनकी लहरें जो हैं वो पहुंच जाती थी. तो वो कहीं ना कहीं उन्हें डर उस चीज़ का लगता था. December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather. 25 दिसंबर आया, क्रिसमस डे था. क्रिसमस तक वो लोग केप टाउन से 3,500 किलोमीटर दूर निकल चुके थे. इतने एट्रोशियस मतलब अत्याचारी, शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो अत्याचारी. तो इतने अत्याचारी या फिर ऐसे नेगेटिव वेदर के बाद भी उन्होंने अच्छा खुशी खुशी क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया, क्रिसमस सेलिब्रेट किया. वो ख़त्म हुआ, न्यू ईयर आया. न्यू ईयर के दिन भी उन्हें कोई ऐसा माहौल में या फिर मौसम में खास डिफरेंस जो है वो नहीं मिला. बट उन्होंने सोचा था कि चलो अब मंथ चेंज हो रहा है, धीरे धीरे वेदर और सीज़न चेंज होगा, तो ये जो सिचुएशन स्टेट बन रही है वो भी धीरे धीरे चेंज होंगी. वी रीजन इट हैड टू चेंज, उन्होंने सोचा कि ये धीरे धीरे चेंज होगा और वो डेफिनेटली चेंज भी हुआ. बट फॉर द वर्स, वो मौसम चेंज तो हुआ लेकिन और ज़्यादा घटिया होने के लिए, और ज़्यादा खतरनाक होने के लिए चेंज हुआ. At dawn on January 2nd, the waves were gigantic. Dawn, early morning, बिल्कुल जो सुबह सुबह का सनराइज वाला टाइम होता है. तो जो सुबह सुबह बिल्कुल सनराइज वाला टाइम था, उसमें 2 जनवरी की अर्ली मॉर्निंग जो वेव्स उन्हें दिखी, वो वेव्स जो थी वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ी, जाइजेंटिक. अब 2 जनवरी अर्ली मॉर्निंग जब उन्होंने देखा उठ के, तो सिचुएशन ऐसी थी कि वेव्स बहुत बड़ी बड़ी थी, बहुत ज़्यादा डरावनी थी. वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी. अब वो इतनी भी बड़ी कोई शिप या ऐसा कोई नहीं था, वो वेव वॉकर जो थी उनकी बोट थी, एक छोटी सी स्टॉर्म जिब थी अपने बोट को स्टॉर्म से बचाने के लिए, और 8 knots ही उनकी स्पीड थी. वो 8 knots ट्रैवल कर पा रहे, इतनी कोई स्पीड से भी नहीं जा रहे थे कि वो वेव्स को क्रॉस करके निकल जाएं. स्पीड से होते तो वेव्स को क्रॉस करके निकल जाते, बट इतनी भी स्पीड नहीं थी. अब जब भी वेव्स आती और वो शिप जो है वो उन वेव्स के ऊपर से उठ के जब जाती, जब भी वो किसी वेव के टॉप पर वो शिप होती, तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ एंडलेस सी दिखाई देता और कुछ भी दिखाई नहीं देता. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू ईयर्स. अब 15-15 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं और उस लहर पे बोट उठ रही है उनकी, ऊपर तक जा रही है, वो ऊपर नीचे हो रही है, और ऊपर सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा. और उनके कानों में वो आवाज़ें पड़ रही है विंड की, द स्क्रीमिंग वॉइस, जैसे चीख रही हो विंड, चिल्ला रही हो जोर जोर से. दैट वॉज पेनफुल टू ईयर, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रहा था. बोट को स्लो डाउन करने के लिए, अब ऐसी सिचुएशन में एकदम से फास्ट अगर बोट को चला लेंगे तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा. क्रॉस करना अलग चीज़ होती है, अब अगर वेव के ऊपर से बोट निकल रही है तो अगर वो स्पीडीली निकलेगी तो वो और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. तो स्लो डाउन करने के लिए उन्होंने स्टॉर्म जिप को ड्रॉप डाउन किया और एक रोप से उसको खींच करके और अपनी बोट को जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन करने की कोशिश की. फिर उन्होंने हर चीज़ को डबल लैश किया. डबल लैश मतलब हर चीज़ को
दो गुना तरीके से बांधा, टाई अप किया, उनकी स्टॉर्म जिब, उनका व्हील, सारी चीज़ों को उन्होंने डबल नॉट से बांधा ताकि जब भी कोई एक बहुत बड़ी वेव अगर बाय चांस आके हिट भी करे तो किसी चीज़ को नुकसान ना हो। फिर उन्होंने अपने लाइफ राफ्ट ड्रिल्स, जो भी लाइफ लाइन्स, जो भी लाइफ सेविंग उन्होंने इक्विपमेंट अपने पास रखा था, लाइफ जैकेट्स थे, ऑयल स्किन्स थी, वो जो सारी चीज़ें थी वो सब कुछ उन्होंने अपने आप को भी पूरा तैयार रखा कि अगर कोई ऐसी मुसीबत या फिर अगर कोई ऐसी वेव या ऐसा कोई तूफान उस समय समुद्र में आता है तो वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो उन्होंने हर चीज़ के लिए खुद को रेडी किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। उस आगे बढ़ते हुए डिजास्टर का पहला इंडिकेशन उनको मिला शाम को 6 बजे विथ एन ओमनियस साइलेंस दैट इज कंप्लीट साइलेंस। सब कुछ आसपास शांत हो गया। अगर हम हिंदी में कहें तो वो तूफान के पहले वाली शांति थी। एवरीथिंग वॉज काम, एवरीथिंग वॉज साइलेंट। द विंड ड्रॉप्ड, द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। वो जो इतनी तेज हवा चल रही थी, वो हवा जो इतनी दिनों से वो हवा जो उनके साथ साथ चल रही थी वो एकदम से बंद हो गई और जो आसमान था वो पूरा घना, पूरा काला काला हो गया। एवरीथिंग ग्रू डार्क। हम भी सुनते हैं जब बारिश होती है तो हवा चलती है तो बारिश इतनी इफेक्टिवली नहीं आती है, लेकिन जब बहुत ज़ोरदार बारिश होनी होती है तो हवा बिल्कुल, जो तेज़ हवा चल रही होती है वो रुक जाती है, आसमान पूरा अंधकार, पूरा अंधेरा हो जाता है। अब इतने बड़े तो आप लोग हैं कि उस चीज़ को ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं कि जब भी बहुत तेज़ या बहुत घनी बारिश आती है तो हवा चलना बंद हो जाती है, जो स्पीडीली बिल्कुल हवा चलती है और पूरा आसमान जो है वो पूरा काला काला हो जाता है। वही सिचुएशन उस समय वहाँ उन लोगों के साथ उस दिन हुई। द विंड ड्रॉप्ड, then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship। फिर एक कहीं से एक बहुत जोर से रोर की आवाज आई, एक बहुत जोर से गर्जन की आवाज आई और एक बहुत बड़े से क्लाउड ने उनकी शिप को कवर अप कर लिया। लेकिन बहुत ही हॉरर और बहुत ही डर के साथ ऑथर ने ये रियलाइज करा कि उनकी शिप को जो कवर अप कर रहा था वो एक्चुअली कोई क्लाउड नहीं, एक बहुत बड़ी सी वेव थी, एक बहुत बड़ी सी लहर थी जो तूफान था उस समुद्र में उस समय। और वो तूफान उनकी शिप के ऊपर से आ रहा था और वो उसको पीछे से वो ऊपर उठ रहा था और बुरी तरह से वो उनकी शिप को कवर अप करने वाला था। अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। ऑथर कहते हैं कि ऐसी वेव थी जैसी उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स with a frightful breaking crest। It appeared perfectly vertical। एकदम पीछे से आई लेकिन एकदम खड़ी की खड़ी वेव थी, वो बिल्कुल खड़ी सीधी पहली। और जितनी अभी तक उन्होंने वेव्स ऑब्जर्व की थी, 15 मीटर हाईएस्ट वेव उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उससे डबल हाइट की, मतलब 30 मीटर ऊंची उठने वाली। 30 मीटर्स अगर वर्टिकली हम इमेजिन करें तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात। आप 10 से 12 मंजिल की हाइट इमेजिन कर सकते हो, वो होती है ऑलमोस्ट 30 मीटर्स हाइट। तो उस 30 मीटर्स हाइट इतनी लंबी वेव को और एकदम खड़ी सीधी, अब अगर वो इतनी खड़ी सीधी उठ रही है तो वो पलट के गिरेगी तो सीधे ऑथर की शिप पर ही। एंड विथ अ वेरी ड्रेडफुल क्रेस्ट और ट्रफ, दो चीज़ें पड़ी आपने, क्रेस्ट ऊपर वाला पार्ट वेव का, ट्रफ नीचे वाला। तो वो क्रेस्ट जब पलट के नीचे आएगा तो वो कितना स्ट्रांगली उस बोट को हिट करेगा, हम उस चीज को सोच सकते हैं। ऑथर ने उस चीज को वहां पर ऑब्जर्व किया। द रॉर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, बट देन अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक। वो जो रॉर आ रहा था, वो जो गर्जना हो रही थी, सडनली वो एक थंडर में चेंज हो गया, बहुत बड़ा थंडर हुआ। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, वो जो वेव आ रही थी वो बढ़ने लगी आगे, वो जब नीचे की तरफ आने लगी, वो जब गिरने की कंडीशन में आई तो वो रोर जो था वो एक बहुत बड़े थंडर में चेंज हो गया। एक मोमेंट के लिए तो ऑथर को लगा कि वो इस वेव को ट्रैवल करके आगे निकल जाएंगे और वो खुद भी बच जाएंगे और अपनी बोट को भी बचा लेंगे, वो नीचे गिरेगी तब तक वो उसको क्रॉस कर जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो वेव जो थी वो शिप के डेक के ऊपर गिरी विथ अ लाउड एक्सप्लोजन। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और वो इतनी बड़ी वेव आके शिप के ऊपर गिर गई।
और जैसे ही वो गिरी पूरी बोट तहस नहस हो गई, पूरी बोट हिल गई एकदम, जैसे बहुत बड़ा भूकंप आया हो। और जो ऑथर जो बोट के व्हील पर थे, बोट को संभालने की कोशिश कर रहे थे, उनका हेड जाके उस व्हील में बम्प हो गया, वो स्मैश हो गया जाके हील उस व्हील में, और बुरी तरह से वो फिक गए। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और वो बिल्कुल उस बोट से ही अलग गिर गए, बाहर जाके समुद्र में गिर गए। ही वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड। वो उस शिप से बिल्कुल उस इतना ज़्यादा लाउड एक्सप्लोजन था वो, कि वो जब व्हील संभाल रहे थे तो वो एकदम से पहले उनका सिर जाके व्हील से टकराया और फिर वो नीचे समुद्र में आ गए। एंड ही वॉज सिंकिंग बिलो द वेव्स। उस वेव्स के नीचे वो बिल्कुल ही डूबने जा रहे थे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। इतना सब विजुअलाइज करने के बाद ऑथर ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि इट्स माई अप्रोचिंग डेथ नाउ। इतनी बड़ी वेव से सर्वाइव होके हेड बम्प करके पानी में गिर जाना, समुद्र में गिर जाना, और वेव्स के नीचे वो डूबते जा रहे थे, तो उन्होंने समझ लिया कि नाउ माई डेथ इज अप्रोचिंग एंड ही वेंट पीसफुल। उनके हाथ पैर नहीं चल रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, एंड ही एक्सेप्टेड दैट नाउ माई डेथ इज अप्रोचिंग। बट सडनली अनएक्सपेक्टेडली उनका हेड जो है वो पानी में से पॉपअप हुआ, पानी से बाहर आया, और कुछ मीटर की दूरी पर उन्हें अपनी बोट वेव वॉकर दिखाई दी। वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। मतलब वो जब जा रही थी तो वो उन्होंने दूर से देखा, कुछ मीटर दूर पर उन्हें अपनी वेव वॉकर बोट दिखाई दी, और वो भी हॉरिजॉन्टली जो है वो नीचे डूबने की स्थिति में ही थी, बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि अभी पूरी तरह से डूब जाएगी। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। और एकदम से एक और वेव आती है, वो छोटी सी लहर आती है, और उस लहर से टकराकर और वो बोट फॉर्चुनेटली वापस ठीक हो जाती है।